پاکستان کا ویس رضا قادری ہو، اگر میری طرف پڑھنے کی کوشش کیا مطلب بھول جائے گا. اللہ اس تیور میں پڑھتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں. یہ سب ماحول میں یہی لوگ پڑھتے ہیں. میں جب پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے ماحول بالکل اوکے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ ماحول بنے گا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں. آرام سے رہیے، آرام سے. میں ایک شعر سنا رہا ہوں، سنیے. اچھے اچھے اشعار آپ نے سن لیا ہے. سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے. پہلے اس بات کو میں صاف کر دوں تاکہ بعد میں نہ بولے مولوی صاحب اٹھایا کہیں اور پٹک دیا کہیں. پڑھنے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پڑھنے سے زیادہ سننے میں محنتیں بھی پڑتی ہیں. جیسے قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے، سننے والے کو زیادہ ثواب، کیونکہ اسے محنت بھی تو زیادہ پڑ رہی ہے. دھیان کو یہاں رکھنا ہے، ذہن کو یہاں رکھنا ہے، نفس امارہ حملہ کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے. بڑی محنتیں ہیں. تو آپ سن رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے. اب بیچ میں اگر آپ کا دل چاہے، سمجھ گئے، نہ جبرن نہ قہرن نہ زغرن نہ عسرن، محبتن عقیدتن تعظیمن تکریمن تحریمن، اگر دل سے آپ نے سبحان اللہ کہا تو سمجھیے اللہ آپ کی نیکی میں اضافہ فرمائے گا. سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. حضرت میں سبحان اللہ بول لے رہا ہوں. اتنا اچھا شعر تھا، آپ لوگ نہیں بولے، میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں خود اللہ کا فضل ہے، میں اپنے گھر میں نعت پڑھتا ہوں جناب. جی ہاں، بیوی رہتی ہے، میرے بچے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ نہیں کہتے. اس کو کہتا ہوں سبحان اللہ کب بولو گی، اس سے بھی بلواتا ہوں، ثواب نہیں جاتا ہے. سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا. سبحان اللہ. بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا. اب ہر ایک امتی، کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا. ہمہ شمہ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نمازی بھی پکارے گا، غازی بھی پکارے گا، قاری بھی پکارے گا، حاجی بھی پکارے گا، بی پی ایل والا پکارے گا، اے پی ایل والا پکارے گا، دیہاتی پکارے گا، شہری پکارے گا. ادنا ہو، اعلیٰ ہو، کالا ہو، گورا ہو، جوان ہو، بڈھا ہو، کنوارا ہو، شادی شدہ ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، دیہاتی ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو. اب میں کھل کے میں بتا دے رہا ہوں، مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، محدث صاحب ہو، مجتہد صاحب ہو، یہاں تک کہ صابر صبر کرنے والا ہو، صابر ہو یا شاکر ہو یا عابد ہو. یہی نہیں، آگے بڑھیے، ولی ہو یا خواجہ ہو یا غوث ہو یا قطب ہو یا ابدال ہو یا افراد ہو. یوں کہہ دیجئے، بریلی والے پکاریں گے، کچوچا والے پکاریں گے، مخدوم سمنا پکاریں گے، مخدوم بہاری پکاریں گے، باخدا نظام الدین پکاریں گے، حضرت صابر کلیری پکاریں گے، تمام پکاریں گے. غوث اعظم بھی پکاریں گے، کربلا والے پکاریں گے، بدر والے پکاریں گے، حنین والے پکاریں گے، مکے والے پکاریں گے، مدینے والے پکاریں گے، صحابی پکاریں گے، تابعی پکاریں گے، تبع تابعین پکاریں گے، ائمہ دین پکاریں گے، مجتہدین پکاریں گے. اور میں خلاصہ کہہ دوں، حضرت ابو بکر پکاریں گے، حضرت عمر پکاریں گے، حضرت عثمان پکاریں گے، مولا علی پکاریں گے، حیدر کرار پکاریں گے، کربلا کے تاجدار پکاریں گے. اور اگر انہوں نے پکارا تو کیا پکارا؟ کمال تو یہ ہے، حضرت آدم پکاریں گے، حضرت نوح پکاریں گے، حضرت شیخ پکاریں گے، حضرت یحییٰ پکاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سب کی ضرورت بنا دیا ہے. جو لوگ آج نہیں پکارتے ہیں، جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو حرف ندا پہ بحث کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا منع ہے، وہ نہیں پکارتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں. میں یہ کہہ دوں کھل کر کے، وہاں بھی پکارے گا، دیوبندی پکارے گا، لفظی پکارے گا، خارجی پکارے گا، شیعہ پکارے گا، سنی پکارے گا، بدعقیدہ پکارے گا، جتنے ہیں وہ سب پکاریں گے. کیوں؟ اس لیے
न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बाबा काम आएगा, न दादी काम आएगी, न कोई रिश्तेदार काम आएगा। सबको किसी रहनुमा की जरूरत होगी, सबों को किसी गमखार की जरूरत होगी। न बीवी शौहर के काम आए, न शौहर बीवी के काम आए। हर आदमी ढूंढेगा कोई सहारा बन जाए, कोई गम का मदावा बन जाए, कोई गमखार बन जाए, कोई ऐसा हो जो मेरी नैया को पार कराने वाला हो जाए। पता चला माँ के पास गया, माँ सरेंडर बोल गई, बाप के पास गया, वो सरेंडर बोल गया, कोई काम नहीं आया। अब सबकी नजर उठेगी, नजर उठने के बाद यही होगा, गुनहगारों की जमात बनेगी। और जमात बनने के बाद हजरत आदम के पास जाएंगे, हुजूर जैसे हैं हम आपके बेटे हैं, आपने तो अल्लाह का आप खलीफा है, आज आपके बेटों की हालत गैर है। हजरत आदम का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। तमाम अंबिया के पास जाएंगे, सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आला हजरत सरकार बरेली के ताजदार, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की पहचान बरेली के ताजदार, जिनका कलम लाजवाब, जिनकी तकरीर लाजवाब, जिनकी तहरीर लाजवाब, जिनके तशरीफात लाजवाब, जिनके खुलफा लाजवाब, जिनके मुरीदीन लाजवाब, जिनके उशाक लाजवाब। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में उशाक है, भारत में बहुत उशाक है नबी के, लेकिन हर आशिक इश्क पे नाज करता है। और आला हज़रत वो है जिन पे इश्क नाज करता है। हर आलिम इल्म पे नाज करता है, इल्म आला हज़रत पे नाज करता है। हर मुफ्ती अपने फतवा पे नाज करता है, हर फतवा आला हज़रत पे नाज करता है। हर मुरीद अपने पीर पे नाज करता है, और आला हज़रत का पीर अपने मुरीद पे नाज करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सबने तमाम अंबियाए किराम की बारगाह में जाएंगे, सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आला हजरत सरकार ने जब इस इज़हबू इला गैरी की तशरीह फरमाया तो मचल जाइएगा। इरशाद फरमाते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने यही कहा था इज़हबू इला गैरी। नूह ने कहा इज़हबू इला गैरी, मूसा ने कहा इज़हबू इला गैरी, हजरत याकूब ने कहा इज़हबू इला गैरी, यानी किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। इस इज़हबू इला गैरी का जो तर्जमा कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी आपने क्यों किया? माइक वाले भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों किया? मेरा साउंड बढ़ा था, आपने उसका साउंड क्यों कम कर दिया? आप जानते हैं साउंड बढ़ा के रखिए, ऐसा कीजिए साउंड वहाँ सीटी तक बढ़ा के छोड़ दीजिए। हम सट के बोले या हट के बोले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मशीन फट जाए तो हमसे कुछ पैसा ले लीजिएगा, उसको ठीक करा लीजिएगा, यही ना होगा। उसके अलावा क्यों आपने कम क्यों किया? अब आइंदा ये काम नहीं कीजिएगा, वरना मैं तावीज़ भी लिखता हूँ। अगर मैंने तावीज़ लिख करके दरख्त में लटका दिया तो फिर मुझे आप ढूंढते रह जाइएगा। कई किताबों की इजाजत है, आप वहाँ तक जहाँ तक साउंड न बढ़े, जानते हैं साउंड जहाँ तक सीटी न मारे आप साउंड बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छी सेटिंग है, क्यों घबरा रहे हैं? पैसे की क्या कमी है, निकाले हैं 200-300 रुपया हमेशा पास में रहता है। गरीब के लिए वही न है लाख 2 लाख, क्या गरीब के लिए वही न लाख 2 लाख है, और अमीरों के लिए क्या है? सरकार ने तो इरशाद फरमाया 3 जंगलों के बराबर भी इंसान को दौलत मिल जाए तो चौथे की तमन्ना करेगा। यह आदमी इतना हरीस है, इतना लालची है। हजरत पहले लोग साइकिल पे भी चढ़ने को तरसते थे। अब कहीं जाते थे तो भैया साइकिल दे दो ना, भैया साइकिल दे दो ना, और दूसरे की साइकिल पे जाता था तो उस वक्त इसको ऐसा लगता था हम बुलेट पे जा रहे हैं। जब साइकिल अपनी हो गई तो उसको बिल्कुल क्या धुलाई सफाई करके उसके बाद फिर तमन्ना हुई बहुत मेहनत पड़ती है। सेकेंड हैंड अगर 2 व्हीलर भी गाड़ी होती तो इतना पसीना नहीं गिरता। चलो वो भी ले लिया, अब उस पे चढ़ने लगा, अब आ रहा स्प्लेंडर जो हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब स्प्लेंडर पे चढ़ते चढ़ते देखिए कितना बड़ा लालची है इंसान, कितना बड़ा हरीस है। अब सोच रहा
वो बहुत पुरानी गाड़ी हो गई। अगर बुलेट अगर हो जाता तो क्या होता, बोलो उसमें एक अलग साउंड है, भट 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 भट। सुन लो, जो आदमी बुलेट चला रहा है मुसलमान और उसका साइलेंसर बहुत भयानक है, भट भट की आवाज है, वो सोच ले मुसलमान कांटा बिछाता नहीं है, राहों में उठाता है। कांटा बिछाता नहीं है, उठाता है। पत्थर रखता नहीं, उठाता है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया अगर रास्ते में कांटा हो तो उसे उठा के हटा दो, अगर रास्ते में पत्थर हो तो हटा दो। या रसूल अल्लाह क्यों हटा दे? आका फरमाते हैं कोई मुसाफिर चलेगा, कांटा होगा चुभ जाएगा, पत्थर होगा ठोकर लग जाए, ये अच्छी बात नहीं ना है। अब नबी के दरिया दिली देखिए, नबी की अता देखिए, नबी की बख्शिश देखिए, नबी का जूत देखिए, नबी का करम देखिए। या रसूल अल्लाह, आने वाला मुसाफिर हिंदू भी हो सकता है, बोला उसके लिए भी कोई काफिर भी हो सकता है, उसके लिए भी कोई मुशरिक भी हो सकता है, उसके लिए भी नबी फरमाते हैं कोई भी धर्म जो भी हो, तुम मुसलमान हो, तुम वो किरदार पेश करो कि दुनिया तुम्हारे कैरेक्टर को देखे तो समझ जाए जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इनका नबी कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालिए। आप, मैं सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, मोटरसाइकिल में कंपटीशन की लड़ाई करने से बचा, जिनकी शादियां हो गई अभी मियां बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, जिनका रिश्ता नहीं लगा है उसका अच्छा रिश्ता लगा, और जो शादीशुदा होने के बावजूद दाएं बाएं कर रहा मौला उसको हिदायत अता फरमा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? दुआ ठीक है कि नहीं भाई? या अल्लाह, जो नौजवान दूसरे की बहन या बेटी की तरफ गलत नजर उठाता मौला उसको हिदायत अता फरमा। दुआ ठीक हुई है ना? अगर सुभान अल्लाह की आवाज आप लोग की नहीं निकली, दुआ रिटर्न, दुआ वापिस हो जाएगी, समझ लीजिएगा। इसलिए अल्लाह ताला फضل फरमाए तमामी हजरात के ऊपर और सबकी हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन। जरा, इतना बड़ा लालची है इंसान, इतना बड़ा। अब जब सरकार ने जब पत्थर और कांटा हटाने का हुक्म दिया, क्यों? दूसरों को तकलीफ न हो, दूसरे को तकलीफ न हो। तो जो बुलेट चला रहा है, साइलेंसर का मुंह फाड़ दिया है, ये सोच रहा है कि जिधर से जाऊं भट भट की आवाज निकले तो कोई मुझे हैरत की नजर से देखे। ए नादान, ऐसे साउंड को ऑफ कर दे जो किसी सुनने वाले को तकलीफ की वजह बन जाए। अरे तू जानता नहीं है तकलीफ देना ही तकलीफ नहीं है, अगर कोई ऐसा सबब भी है जो बाइस तकलीफ हो तो वो भी गुनाह हो जाएगा। इसलिए काम वो न करो कि जिससे किसी को तकलीफ हो, ऐसा काम करो जो बरेली के ताजदार ने दुआ किया और अल्लाह से अर्ज किया काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो, नामे रजा तुम पे करो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बजाता है बड़ 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 बड़। हम तो सोचते हैं कि अल्लाह, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हुआ था 2020 में, एमएलए का इलेक्शन है, मुखिया दुखिया का नहीं, ऊपर की बात कीजिए। तो मैं फाइट किया था और उसके बाद सपोर्ट कर दिया था, मैंने वोट मांगा नहीं था, मैं बैठा भी नहीं था जी। कभी कभी सोचता हूँ या अल्लाह, अगर 1 साल के लिए भी मैं मंत्री होता तो पहले ये फटफटिया जो आवाज है बुलेट की, पहले इसी पे मैं केस ला देता। अब कितना केस देता जानते हैं? जो उसका बाप भी अदा ना कर सके। अभी हॉस्पिटल है, कोई हार्ट का मरीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बड़ वहां पे जाकर तो और एक्सीलेटर दे देगा। अगर ऐसा कोई आदमी मिले, 5 आदमी उसको पकड़ के उसके साइलेंसर के सामने उसका कान सटा दे, एक्सीलेटर देते हैं, हो ही जाएगा। ऐसा इंसान लालची है। बुलेट पे चढ़ने वाला अब सोच रहा है, अपाची नहीं, अपाची चला लिया है, अब सोच रहा है कि जाड़े के मौसम में बड़ी तकलीफ होती है, अगर 4 व्हीलर गाड़ी होती तो बड़ा अच्छा होता।
हेलो 4 व्हीलर पे आ गया, अब रुक जाना चाहिए ना, और आगे बढ़ना है। अरे टाटा ने बहुत हेवी गाड़ी निकाला है, पंच, टाटा पंच, बहुत हेवी गाड़ी है। ले भाई, जैसे तैसे वो ले लिया। इंसान लालची, बढ़ती जा रही है ख्वाहिश। हद तो ये है कि ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ। जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई, इसको कभी करार ही नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, नफ्स के गुलाम न बनो, नबी के गुलाम बनो। नफ्स के गुलाम न बनो। गरीब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अमीर है तो भी शुक्र अदा कीजिए। मैं बताऊंगा ना अभी कैसे। जो गरीब है वो ज्यादा कामयाब है, साबित करूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। कहाँ चले? हाँ, कोई राज की बात हो रही है। मैं नात शरीफ पढ़ूंगा मेरे भाई। नदीम भाई से पहले पढ़ना, हमको तबाह होना है क्या? सुधरे, इतनी अच्छी आवाज की लोग मालिक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हजरात, इंसान लालची अक्सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको मैंने सब्र ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैदान महशर में कोई काम नहीं आएगा। हाँ, सब एक ही बारगाह है, सारे पैगंबर की बारगाह में जाएंगे। इधर गरी, और जब नबी की बारगाह में जाएंगे तो नबी फरमाएंगे अना लहा, आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, आओ आओ। हजरात, अंबिया मुरसलीन की ही जरूरत का नाम सरकार मदीना है। इसलिए मैं देवबंदियों से, वहाबियों से, राफियों से, बदअकीदों से कहता हूं कि तौबा कर ले तमाम फितनों से, तौबा कर ले तमाम अकायदे बातिला से। यही तो आला हजरत ने कहा है। और याद रखना, मैदान महशर में न बाप काम आएगा न कोई काम आएगा, और वहां पे जाएगा। आज या रसूल अल्लाह का नारा कोई लगाता है तो तुझे प्रॉब्लम होता है। जब सारे नबियों की बारगाह से तू वापिस होकर नबी की बारगाह में आएगा तो किस अदा के साथ नबी से मुखातब होगा? क्या कहेगा? या मोहम्मद कहेगा, या मोहम्मद मोहम्मद कहेगा। फरिश्ते इतनी मार मारेंगे कि छठी रात का दूध भी गायब हो जाएगा। नबी का नाम तू लेता है, कितना बड़ा बेअदब है। नबी का नाम लेके बुलाता है, कितना बड़ा नाहंजार है। ए नादान, अगर बाप के सामने अगर बेटा बाप का नाम लेके पुकारे, दुनिया बेअदब कहेगी। अगर बाप को, अगर कोई बाप का नाम सलीम हो, अब बेटा कहते बाप को ए सलीम साहब इधर आइए, दुनिया थूकेगी। नादान, तो जब बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं सामने वो पुकार सकता है, तो उम्मती नबी का नाम लेके कैसे पुकारेगा? और नबी की जरूरत है तो नाम मत ले, जो सहाबा ने तरीका दिया है उस पे अमल कर ले। आला हज़रत की ज़बान में सब यही कहेंगे, बकारे ख़ैश है आदम अगस्री या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगस्री या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुशरिया 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 ताजुशरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला जिंदाबाद, जवाब देने वाले जिंदाबाद, चुप रहने वाला क्या करेगा जिंदा रह के? जब अल्लाह का नाम नहीं लेगा मेरे भाई, ताज्जुब की बात है जिंदा तो अल्लाह अल्लाह करे, है ना भाई? है तो हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, हाथ तो उठाए लेकिन फेफड़ा साफ नहीं है, हा का मखरज के साथ निकालिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ जरूरी बातें बता दे रहा हूँ। अपने गांव में जो मस्जिद है उसको भी रजिस्टर्ड करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन, और उसमें ये सब लिखवाइएगा कि कयामत तक इस मस्जिद में देवबंदी, वहाबी, तबलीगी जमात वाला न इमाम बने, न मुअज्जिन बने, जो भी बने रजा वाला। अगर मदरसा है तो रजिस्ट्री करवाइए या वक्फ करवाइए, उस पर भी ये लिख दीजिए, वरना शयातीन की चालें बहुत लंबी होती हैं, अच्छे अच्छों को फंसा देते हैं। और ये सब पहले लिख दीजिएगा तो एक भी नबी का दीवाना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट को हिला करके अपने ईमान को भी बचा लेगा, मस्जिद के वकार को भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा इसलिए जरूरी है,
आदत पड़ी रहेगी। नहीं समझे? कुछ लोग होते हैं जो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, सफर करते हैं ट्रेन में भी, तो सुबह उठेगा अब पहला काम यही करेगा, समझे? अब खैनी वाले की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन खैनी के बाद भी हो, सिगरेट के बाद भी हो, पान तो नहीं खाता, बीड़ी के बाद भी हो, टॉयलेट से फारिग होने के बाद पहला काम यही करेगा, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, पहले मुंह धोएगा। अरे भाई खा लो ना तब धोगे। बोला दिमाग खराब है क्या? बोला मतलब, बोला हाँ आदत पड़ी हुई है, कहीं भी रहूंगा लेकिन सुबह होगी ना तो सबसे पहले टूथपेस्ट हमको याद आ जाएगा, बगैर किसी के बोले हुए। माँ बाप बच्चे को कहते हैं बेटा इधर आ, पहले मुंह धो ले, ये ले ब्रश पे टूथ लगा दे, ले लो, लेकिन माँ को कोई नहीं बताता, सियाना को कोई नहीं बताता। आप खुद सोचते उठते हैं अब ब्रश लगाया, कोई नहीं बताया, याद आ गया। क्यों? आदत। दिल्ली गए आदत, मुंबई गए आदत, ट्रेन में है आदत, बाहर है आदत। ऐसी आदत लगी कि किसी ने बताया नहीं, सुबह का वक्त हुआ, मुंह धोने का ख्याल आया, हाथ में टूथपेस्ट आ गया, ब्रश आ गया, आपने कर लिया। काश के नमाज की भी आदत लग गई होगी तो कोई बताने वाला ना बताता, आसान होती हमारा कदम मस्जिदों की तरफ रवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदत डालिए, अच्छी आदत डालिए, या रसूल अल्लाह कहने की आदत डालिए। बच्चे सब या रसूल अल्लाह कहते हैं, आपकी जिम्मेदारी अपनी बच्चियों को भी आदत डलवाइए, अपनी इकलौती बीवियों को भी आदत डलवाइए, अपनी बीवियों को समझाइए, बोल बोल या रसूल अल्लाह। अपनी बेटियों को कहिए, उठते बैठते बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों? आदत पड़ी रहेगी। हश्र के मैदान में जब हाजिर होंगे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, हमें तो आदत है सोचे बोलो तो या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहते हैं, ये या हबीब अल्लाह कहने को गलत कहते हैं, वो अपनी खबर नहीं, हमें तो आदत है, हमें तो आदत है। हश्र के मैदान में जब बारगाह नबी में जाएंगे तो बताने की किसी को जरूरत नहीं है, यही से माँ बाप ने सिखा दिया है। वह सरकार सामने होंगे, एक एक सुन्नी कह देगा या रसूल अल्लाह उनसुर हालना, या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदत डालिए। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो फिर इंशाअल्लाह चिल्ला चिल्ला के खूब अच्छी अच्छी तकरीर कर दूंगा। टाइम हो चला है लेकिन इतनी जल्दी जाऊंगा नहीं, पहले आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। पूरा मजमा हवा में हाथ लड़ा के या रसूल अल्लाह। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत है। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमदे मुख्तार की जरूरत है, मुझे भी अहमदे मुख्तार की जरूरत है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसा बाकमाल बनाया। चूंकि जश्न ईद मिलादुन नबी है और हमारे तकरीर का उन्वान अलग है, लेकिन दो तीन बातें मैं बता दे रहा हूँ, नहीं समझे? कुछ लोग कहते हैं वाह तो हम सुने हुए हैं, तो सुने हुए तो अब नहीं सुनोगे। सूरह फातिहा तो जब से पैदा हुए आज तक सुन रहे हो, अजान तो जब पैदा हुए थे उसी वक्त में किसी ने, मुअज्जिन ने, इमाम ने, मौलाना साहब ने कान में अजान दे दिया था, तो अब अजान नहीं सुनोगे। ये तो समझो कि सुने तो समझे कब, सुने तो अमल भी हुआ या नहीं है। डॉक्टर कब तक मरीज को दवा खिलाता है? जब तक के मर्ज खत्म न हो जाए। शुगर है खाते रहो, शुगर है खाते रहो, जब तक नॉर्मल ना हो खाते रहो।